Hello students, I am Matulya Kumar, Assistant Professor, BVD ITM, Lucknow. In this lecture series, we are studying about Introduction to Solid Mechanics. In today's lecture, we will study about types of support and loading condition. So, contents of today's lectures are types of support, type of loading and introduction to shear force and bending moment. So, let us start. So, before starting this theory, before starting this chapter is basically shear force and bending moment diagram. Shear force and bending moment diagram. We have to plot a pictorial representation of amount of shear force and bending moment. We will discuss briefly in the later on in this lecture that what is shear force, what is bending moment, how to draw shear force and bending moment, and what are the steps of bending moment diagram. Before starting, let us give a brief introduction about this chapter. What is the necessity and what is the need of this chapter, so that we get interested in studying this. Basically, shear force and bending moment are the two of the major factor for designing any kind of a structure. Shear force and bending moment are the two most important factor that need to be considered for designing any type of a structure, whatever the structures exist. As a civil engineer, we build or we construct this kind of these two forces are the one of the most important forces, because first of these forces have the direct impact on a structure, or either in an indirect way. Like for bending moment may create the bending stress, shear force may create the torsion inside the body. So, these are the application of bending moment and shear force, but these two kind of force are also direct impact on the structure. So, this is the one of the most important, condition or important aspect for structural designing. So, shear force and bending moment. What about shear force and bending moment diagram? This is the we are talking right till now we are talking about shear force and bending moment, but what is the need of shear force and bending moment diagram? Shear force and bending moment diagram are the analytical tool used in conjunction with a structure analysis to perform a structural design by determining the value of shear force and bending moment at a given point of a structural element, such as a beam, column and slab, whatever it is, whatever this element structure, because we know that basically any kind of structures are made at a kind of four types of component. First one is slab, second one is beam, third one is column, final one is foundation or footing. Basically, these are the four major component of a building, slab, beam, column and footing. So, this four component of a body is subjected to bending moment, shear force, axial force, all types of other forces. So, to find what is the impact of this force on our structure, we have a concept called structural analysis that you are going to read in next semesters. But strength of material, from strength of material we have to carry basically a structure analysis is the advancement of strength of material or introduction to solid mechanics, but the basic concept of structural analysis totally comes from strength of material itself. Like whether it may be the deflection chapter or it may be the bending moment and shear force diagram or bending stress chapter, each chapter of strength of material have direct implementation or application in the structural portion, or it may be a structural analysis or designing, it has the direct application. So, this is the one of the most important chapter for civil engineering point of view that we have to complete focus about that. What does this diagram say? What does the bending moment and shear force diagram say about a structure or about structural components? So, from this diagram we can easily determine the type, size and material of a member in a structure, so that the given set of load can be easily carried out without a structural failure. Another application of shear force and bending moment of diagram is that the deflection of beam can easily be determined using various theorems. There are the various theorems such as conjugate beam method or slope deflection method. These are the very different type of method that from which with the help of that we can calculate the amount of slope or deflection going to be observed in a beam. Next application of shear force and bending moment, that members with support loading applied a perpendicular. Now, what basically on which type of a structural component we are going to study shear force and bending moment. So, for shear force and bending moment we are calculating on a beam, only. Okay. So, member with support loading applied perpendicular to their longitudinal axis is called beam. So, what is beam? The simple definition of beam, that member with support loading
and support loading, and loading are applied perpendicular to its axis is called to be beam. Beams are classified on the way they are supported on different types of, on the basis of different types of support we classify different types of beam. So basically beam are the horizontal component of a structure, a structure which is supported, and loading is applied perpendicular to its axis, okay. So types of beam. So types of beam are basically there are 5 types of beam. First one is cantilever beam, second one is simply supported, third one is overhanging, fourth one is fixed beam, and fifth one is continuous beam. So we will study each type of beam part by part. So first type of beam is cantilever beam. This is the general pictorial representation of cantilever beam. In a cantilever beam, one part or one end of beam is fixed. This is fixed support. Okay, this is fixed support. Okay, fixed support, and this is free. There is no support there. The support is completely eliminated from other end. This is the fixed support. Okay, so this is the main representation. So what is cantilever beam? A beam which is fixed at one of its end and other end is free is called cantilever beam. We have just studied one of beam is rigidly fixed, completely fixed. There is no any kind of movement allowed in one type of, but at the other end of beam, beam is completely free to rotate in any of direction, whether it will be x, y, or resultant of this 3 direction. It can completely rotate. There is no restriction over there. So what is the practical example? What is the practical example of cantilever beam? The practical example of a cantilever beam is छज्जा. हम लोग के घर के बाहर में छज्जा लगा होता है ना, छज्जा is the practical example of cantilever beam because one end of a छज्जा is fixed to the beam. Okay, and other end is completely free. So that is the practical example. Of cantilever beam. Now we are talking about simply supported beam. Simply supported beam, a beam which is freely supported at both end. Is called as simply supported beam. Now what does term freely supported? Freely supported means, freely supported implies that the end of support exert only the force upon the bar but not the movement. It means, what does it mean? Like these are the two supports. This is the pictorial representation of simply supported beam. So this support, both the support is just applying a vertical reaction or vertical force to the member like this. We will discussing about the amount of reaction these supports are given, but these are only exerting the force toward the beam. There is no any rotation. On these two end or these two support point. Okay, so hence it is known as simply supported. Okay, simply supported. Only just they are the beam is kept over this support. There is no rotation. There is no fixation. Nothing. It's only placed like when we place a plank between a river stream to cross one and another side of river stream. That is one of the perfect example of this simply supported beam. Next type of beam is overhanging beam. Overhanging means are a special type of simply supported beam in which one or more than one end of beam are overhanged. Just like these are the two support. These are two supports. Okay. If this support is placed over there, then it is an example of simply supported beam. Now what is done? What is here? What is difference here? The difference is that the support is moved toward inside of the beam, toward inner side of the beam, due to which this portion is felt as hanging. This portion is felt as hanging. Okay, this portion is felt as hanging. It's known as overhanging beam. Okay. Next type of beam is fixed beam. Fixed beam means if the both end of the beam is completely fixed, rigidly fixed is known as fixed end. If the both end of beam is completely fixed is known as fixed beam. Other type of beam is continuous beam. Continuous beam, when beam is supported on more than two support is known as fixed beam, or sorry, is known as continuous beam.
is known as continuous beam when a beam is supported on more than two supports, okay, because on two supports it is simply supported. If only one support, it is cantilever, okay. If supported on more than two support is known as continuous beam. Now after discussing the type of beam, now we will discuss about types of load acting on a beam. The first type of load is concentrated load. What is concentrated load means? This type of load acts relatively on a smaller area. Concentrated load act relatively on a smaller area, or we can easily understand this topic like concentrated load can also be known as point load. Now point means just single dot. So what is the surface area of this point? It is negligible amount. Hence point load means the type of load acts relatively on a smaller area. With relatively a smaller area means with respect to the cross section, the amount of load acting on the area, or the amount of area that a load is occupying is relatively less. Such type of load is known as concentrated load or a point load. For example, force exerted by a chair or a table leg on a floor. हम लोग के घर में चेयर टेबल लगा हुआ है, तो चेयर एंड टेबल के जो लेग हैं, जो उनके पाँव हैं, जो वो फोर्स लगा रहे होते हैं सरफेस पे, फ्लोर पे, तो उस क्योंकि फ्लोर का सरफेस तो बहुत बड़ा होता है, तो लेकिन अब चेयर के लेग की क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी होती है? कम होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर के सरफेस एरिया से. इट मीन्स दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड. ओके, नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. एज जैसा कि नाम खुद एक्सप्लेन कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट ना होके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चलने के बाद फिक्स अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सच टाइप ऑफ लोड को बोला जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए, हम लोग एग्जांपल इसका ले कि हम लोगों के पास में कुछ इस तरीके से बीम है, ये पूरी बीम है. इस बीम के ऊपर जब स्लैब कास्ट किया जाता है, तो स्लैब का जो थिकनेस होता है ना वो कांस्टेंट होता है. पूरे छत में जो स्लैब की कास्टिंग होती है, यानी कि छत, स्लैब मतलब छत, तो पूरे छत की जो थिकनेस होती है ना वो कांस्टेंट होती है. तो थिकनेस की वजह से अगर हम कंक्रीट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट निकल जाता है. तो उसकी बस थिकनेस सेम है, डेंसिटी मटेरियल का सेम है, इसका मतलब वो पूरे के पूरा स्लैब का जो वेट होगा वो सेम होगा, यानी कि हर मीटर पर में सेम अमाउंट ऑफ वो लोड चलता चला जाएगा. सेम अमाउंट पर मीटर के हिसाब से वो चेंज नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी. उस टाइप के लोड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. एग्जांपल में जैसे मैंने फ्लोर स्लैब, जैसा भी हम लोग ने एग्जांपल में लिया, फ्लोर स्लैब जो होता है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का. अदर टाइप ऑफ लोड जो आता है वो होता है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड. ये ठीक उल्टा है विथ रिस्पेक्ट टू, ये ठीक उल्टा है किसके रिस्पेक्ट में? यूडीएल के रिस्पेक्ट में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के रिस्पेक्ट में. ये ठीक उल्टा है. इसका जो परफेक्ट एग्जांपल आपको समझना हो तो वाटर प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब हम लोग वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, बहुत बार हम लोग ड्रॉ किए थे वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देखते होंगे कि वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ इस तरीके से, क्यों? क्योंकि वाटर प्रेशर का जो इंटेंसिटी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ बढ़ती चली जाती है. जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर ये 1 है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और ये गामा हम लेते हैं इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन. ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी? 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, ये 50. इसका मतलब देखते हैं कि इंटेंसिटी जो है यूनिफॉर्मली वेरिंग नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वेरी कर रही है. क्यों? क्योंकि 1 मीटर चलने पे ये हर 1 मीटर चलने पे ये 10-10 अमाउंट से इसका स्ट्रेस या इसकी जो लोड है वो बढ़ रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. इससे पहला वाला क्या था? इससे पहला वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था कि ये 10 नहीं रहेगा, ये 10 से 20 नहीं होगा. अगर ये पूरे लेंथ पे वेरी कर रहा हो, पूरे लेंथ पे कुछ इस तरीके से हो, तो यहाँ भी 10 रहेगा, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 10 10 10. इसको ये एग्जाम्पल है यूडीएल का, ये एग्जाम्पल है यूवीएल का, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ओके, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता क्या है. तो शेयर फोर्स जो होता है, शेयर फोर्स इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स आइदर टू द लेफ्ट
और टू द राइट हैंड साइड ऑफ अ सेक्शन। मतलब सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है। हमारे पास एक बीम है जो कि ये सिंपली सपोर्टेड है और इस पे जो रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है उसको हम लोगों ने नाम दिया है आर ए एंड आर बी। ठीक है, आगे हम रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आर ए एक रिएक्शन फोर्स है, आर बी एक रिएक्शन फोर्स है। और ये जो बीम है इसके ऊपर में जो लोड लग रहा है, ये जो बीम है इसके ऊपर में जो लोड आ रहा है वो W1 आ रहा है और ये W2 आ रहा है। ये लोड आ रहा है W1 और W2। और अगर आपसे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन बताए, शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन बताए कि इस एक्स सेक्शन पे, ये जो सेक्शन है एक्स, इस सेक्शन पे शेयर फोर्स कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने एक्स सेक्शन से कट कर लिया। एक्स सेक्शन जो है वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे हम लोग फोकस रहेंगे। तो एक्स सेक्शन से हम लोगों ने एक सेक्शन कट कर लिया। कट करने के बाद हम देखेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए या तो इस सेक्शन के राइट में कितने फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है या इसके लेफ्ट में फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, टोटल मैग्नीट्यूड, आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। ये बीम तो एक ही है, या तो हम इस पोर्शन में सेक्शन बी वाले पोर्शन में जाएंगे, आरबी वाले पोर्शन में जाएंगे या आरए वाले पोर्शन में जाएंगे। तो आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन, आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन, इन दोनों सेक्शन पे हम लोग को फोकस करना है कि इन दोनों सेक्शन पे फोर्स की वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफबीडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्योंकि हमने इस फोर्स को कंसीडर करना था। तो अगर हम इसके राइट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड को यानी कि आरबी वाले पोर्शन को देखें, तो एक्स सेक्शन पे नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ रहा होगा, एट इस सेक्शन पे नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ रहा होगा। तो सपोज करते हैं कि हम डाउनवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, अपवर्ड फोर्स को निगेटिव ले रहे हैं। तो राइट हैंड साइड पे नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ रहा है, W2 माइनस RB, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये RB माइनस W2 भी हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए। RB माइनस W2 भी लिख सकते हैं, उसका इशू नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, कोई इशू नहीं है, मैग्नीट्यूड इसकी सेम रहेगी। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, यानी कि RA पॉइंट से बात करें, RA पॉइंट से अगर हम बात कर रहे होते हैं तो उस पोर्शन वहाँ पे कितनी इसमें डेवलप हो रही होगी शेयर फोर्स की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, या तो इसको हम RA माइनस W1 लिखेंगे और W1 माइनस RA लिखेंगे, दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम ही रहेगा। बस डिपेंड करता है कि हम लोगों का साइन कन्वेंशन कैसा है। अगर हम लोग अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड निगेटिव ले रहे हैं, तो RA माइनस W1 लिखेंगे। और अगर हम लोग डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड निगेटिव ले रहे हैं तो W1 माइनस RA लिखेंगे, मैग्नीट्यूड सेम आएगी। डायरेक्शन का फर्क रहेगा, तो जैसा डायरेक्शन इस साइड रहेगा सेम डायरेक्शन में हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और आगे साइन कन्वेंशन हम लोग जब शेयर फोर्स डायग्राम बनाना शुरू करेंगे तो उस टाइम में हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे कि किस साइन कन्वेंशन की हेल्प से हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो अभी के लिए शेयर फोर्स कैलकुलेट अगर आपको करना हो तो आपको जिस सेक्शन पे शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी है उस सेक्शन के, या तो उस सेक्शन के लेफ्ट में जितनी टोटल समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स आप निकाल लीजिए तो वो उस पॉइंट पे शेयर फोर्स आ जाएगा, या आप उस सेक्शन के राइट में, या तो आप उस सेक्शन के राइट में जाके टोटल समेशन ऑफ शेयर फोर्स आप निकाल लीजिए, टोटल समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स आप निकाल लीजिए, तो आपको शेयर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी उस पर्टिकुलर सेक्शन पे। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट मींस, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट मींस, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट मींस, बेंडिंग मोमेंट का क्या मतलब है। सो बेंडिंग मोमेंट इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ ए सेक्शन। ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट अ पर्टिकुलर सेक्शन आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। ये है, लेकिन अब बात करते हैं कि ये करता क्या, ये बता इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। नाम से क्या पता चला, नाम से पता चला बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मतलब कोई भी चीज़ को मुड़ना, कोई भी चीज़ को मोड़ना बेंड होता है। तो बेंडिंग मतलब कोई जिसकी वजह से मुड़ रहा हो उसको बोलते हैं। यानी कि बेंडिंग मोमेंट मतलब हुआ कि बीम को बेंड करने के लिए, मोड़ने के लिए जो मोमेंट हो डेवलप हो रहा है उस मोमेंट को हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट। ये इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें सपोज करते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक्स सेक्शन लेते हैं, एक्स सेक्शन पे हमें बात करनी है, जिस एक्स सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं, इस सेक्शन पे बात करना है कि इस सेक्शन पे मोमेंट कितना डेवलप हो रहा है, हमसे कोई पूछा तो हमको क्या पता, हम लोगों को क्या बताया गया, या तो आप इसके लेफ्ट में पूरा ले लीजिए या तो आप इसके राइट वाले साइड में टोटल जो मोमेंट आ रहा होगा उसका जो समेशन होगा वो सम होगा, वो यहाँ पे मोमेंट होगा। लेकिन अब मोमेंट क्या होता है, तो मोमेंट का एग्जाम्पल फार्मूला होता है, मोमेंट का फार्मूला होता है
मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कितना है, बहुत ही सिंपल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ये है तो फोर्स का परपेंडिकुलर यही डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आपसे इस सेक्शन पे पूछा जाए, इस सेक्शन पे पूछा जाए कि मोमेंट कितना डेवलप होगा, तो पहले अगर हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, लेफ्ट साइड से चलते हैं, तो लेफ्ट साइड से ये आर ए डेवलप हो रहा है सपोज करते हैं, और ये लेंथ हम ले लेते हैं ए, और ये लेंथ ले लेते हैं बी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये बी ले लेते हैं, ठीक है। ये आर ए डेवलप हो रहा है और यहाँ पे आर सी डेवलप हो रहा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि बी एंडिंग मोमेंट एट बी आपको बताना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से चलते हैं, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड से चलते हैं। तो लेफ्ट साइड से चलेंगे तो लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में चलेंगे तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे आर ए इंटू एक्स। हमने वर्टिकल फोर्स को पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव लेंगे। बाकी इसका अलग साइन कन्वेंशन है, सैगिंग हॉगिंग के बेस पे है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट से भी बहुत स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, लेकिन बेस इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी साइन कन्वेंशन है तो आप थ्रू आउट उस पूरे बीम के लेंथ पे सेम साइन कन्वेंशन हम लोगों को फॉलो करना है, और वो डिपेंड करता है कि इधर हम लेफ्ट से जा रहे हैं या राइट से जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए समझते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। बाकी साइन कन्वेंशन जरूरत होती है जब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी बी एम बी एट बी निकालना है तो हमें, तो वर्टिकल रिएक्शन मेरा कितना है, आर ए है, अपवर्ड पॉजिटिव लिया हमने, डाउनवर्ड निगेटिव लिया है, ठीक है। इसके भी हेल्प से हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर ए इंटू एक्स लिया, माइनस डब्ल्यू इंटू बी, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन और सेक्शन बी। नाउ अगर हम राइट से आए, सी साइड से आए बेंडिंग मोमेंट निकालना हो हम लोगों को, तो कैसे निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर सी इंटू एक्स, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर सी इंटू एक्स प्लस ही था तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, फिलहाल। तो आर सी इंटू एक्स, तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू बी, आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू बी इक्वल टू आर सी इंटू एक्स, सेम होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, डायरेक्शन वाइज में सेम नहीं बोला। अमाउंट जितनी क्वांटिटी आ रही होगी उस क्वांटिटी, अगर इधर से हम 10 किलो न्यूटन मीटर ले रहे हैं, 10 किलो न्यूटन मीटर ले रहे हैं, तो इधर से ये 10 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा, 10 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा, ठीक है। 10 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। हो सकता है ये प्लस में आए, ये माइनस में आए, ये डिपेंड करेगा कि साइन कन्वेंशन कैसा, जो कि जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना शुरू करेंगे आने वाले क्लासेस में, उस टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए कि मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम ही रहेगा, डायरेक्शन वाइज चेंज कर सकता है, डायरेक्शन जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। लेकिन अगर कैलकुलेट करना हो तो इसी तरीके से, इससे पहले कितनी मोमेंट डेवलप हो रही है, मोमेंट मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की जो यूनिट होती है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और इसकी यूनिट मीटर होती है डिस्टेंस की, तो न्यूटन मीटर में। लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है किलो न्यूटन मीटर और न्यूटन एमएम, किलो न्यूटन मीटर और न्यूटन एमएम, ये दोनों यूनिट होती है बेंडिंग मोमेंट की। शेयर फोर्स की यूनिट फोर्स है तो ये किलो न्यूटन या न्यूटन, ये शेयर फोर्स की यूनिट होती है। अब बात करते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। अब डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इस पूरे लेंथ पे, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। तो जैसे जैसे हम मेरा लेंथ बढ़ता चला जाएगा या लेंथ चेंज होता चला जाएगा, यहाँ पे अलग होगी, इस सेक्शन पे अलग होगी, इस सेक्शन पे अलग होगी, इस सेक्शन पे अलग होगी। सिमिलरली पूरे लेंथ ऑफ बीम के लेंथ पे हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो जो जहाँ हम लोगों को निकालना था, या हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ हमें निकालना है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था या लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट था, हम वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। अब डायग्राम क्या है, तो ये जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो वैल्यू हम, जैसे ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है, सेम हम लोगों के पास में प्लेन पेपर, एक रिलेटिव प्लेन पेपर लेंगे। इस प्लेन पेपर पे जो हमारी बीम की साइज रहेगी उसी साइज के स्केल में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और हम डिफरेंट सपोज करते हैं अगर यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ y प्लॉट करेंगे, यहाँ z प्लॉट करेंगे, फिर यहाँ a प्लॉट करेंगे, और हम इसको कनेक्ट कर देंगे, इसी डायग्राम को बोलते हैं SFD,
अगर हम ये SFD के लिए शेयर फोर्स के लिए प्लॉट कर रहे हैं, अगर हम बेंडिंग मोमेंट के लिए प्लॉट कर रहे थे तो ये BMD हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स वेरिएशन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ओवर द लेंथ ऑफ बीम, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। द डायग्राम डिस्क्रिप्टिंग द वेरियस बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स ओवर द बीम इज कॉल्ड एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शेयर फोर्स डायग्राम। सच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसकी जरूरत कहाँ होती है, तो सच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शेयरिंग फोर्स एंड इट्स लोकेशन। कहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है या कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, या कितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है और कितना अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स डेवलप हो रहा है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ही यूजफुल होता है और बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपली बन जाता है। ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, प्लेन पेपर पे प्लॉट करना होता है, बस रिलेटिवली स्केल होना चाहिए कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर 2 में यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं कि ये 2 रहता तो ये ऑटोमेटिक है कि अगर ये इसके ऊपर है तो ये 3 होना चाहिए, हम इसको यहाँ 2 या 1 नहीं लिख सकते हैं। रिलेटिवली मतलब जिस हिसाब से वैल्यू बढ़ रही है तो आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। कौन कौन सा स्टेप है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हमको जितने भी बीम के रिएक्शन फोर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम स्टेप्स लिखा हुआ है सेम प्रोसेस में हम लोगों का लेक्चर प्रोसीड करेगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। सबसे पहला स्टेप क्या, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए तो रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, हर एक जो भी हमारा डिजायर्ड लोकेशन है जहां जहां हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो उस लोकेशन पे सबसे पहले शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो शेयर फोर्स आया, जो एक्सियल लोड था और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, वो एक के बाद एक उसको प्लॉट करते चलेंगे। बेनिफिशियल होता है कि जब हम बीम के ठीक नीचे में ही दोनों डायग्राम को प्लॉट करते हैं तो बेनिफिट होता है। डायमेंशन ऑफ बीम जो होता है वो स्केल से मेजर नहीं करेंगे, लेकिन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ सेम बीम के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, ऑर्डिनेट जो भी होगा, जो भी वैल्यू मैग्नीट्यूड आ रहा है वो इजीली रिप्रेजेंटेशन हो, क्लियर रिप्रेजेंटेशन हो। कर्वेचर जो होगा वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिख रहा हो, डिस्टिंक्शन हम कर पाए कि स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन के बीच में हाइपर पैराबोला है या क्यूबिक पैराबोला है तो हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए। और जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर जैसे मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, वो मेंशन होना चाहिए। ओके, थैंक यू।